हेलो डियर स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट टॉपिक दैट इज अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। अब अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स यानी वो रहता है कि जो अपन लीगली शेयर्स अलॉट करते हैं एप्लीकेंट को, उसको बोलते हैं अपन अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। जब भी आप शेयर्स के लिए अप्लाई करोगे कंपनी में, एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करोगे और फिर कंपनी को सबमिट करोगे अलॉन्ग विथ एप्लीकेशन मनी। उसके बाद कंपनी क्या करती है, बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करती है और बोर्ड मीटिंग में फिर डिसाइड किया जाता है बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कि अपने को शेयर होल्डर्स को कितने शेयर्स अलॉट करना है, कितने शेयर्स देना है, बाय पासिंग ए रिसोल्यूशन इन द बोर्ड मीटिंग। उसको बोलते हैं अपन अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। फॉर एग्जांपल, अगर मिस्टर ए ने एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करके उसने 10 शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा, फिर कंपनी क्या करेगी, बोर्ड मीटिंग में उसको हो सकता है 10 के 10 शेयर्स उसको अलॉट कर दे, मीन्स उसको दे देना। फिर शेयर्स अलॉट करने के बाद वो पर्टिकुलर पर्सन, he will become the shareholder of the company, and after that his name will be listed in the register of the company. उसको बोलते हैं अपन allotment of shares, means shares पर्टिकुलर पर्सन के नाम पे दे देना, particular number of shares. अब as per Companies Act 2013, following companies have to issue shares in dematerialized form. अब dematerialized form means that is in an electronic form. तो ये certain rules है companies के according to the Companies Act 2013 कि a company making a public offer in excess of 10 crores, कोई कंपनी 10 करोड़ के ऊपर के शेयर्स इशू कर रही है जनरल पब्लिक को, तो उस समय they have to apply in an dematerialized form. सेकेंडली, जो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज रहेगी, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज मीन जो जिन्होंने अपना नाम स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉग्नाइज नहीं किया होगा, रजिस्टर्ड नहीं किया होगा, अगर ऐसी कोई कंपनी शेयर्स अलॉट कर रही है, इशू कर रही है जनरल पब्लिक को, तो उनको भी डिमोटेरियलाइज्ड फॉर्म में ही इशू करना पड़ेगा। एंड लास्टली, सच अदर क्लास और क्लासेस ऑफ द कंपनीज एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द Companies Act. Then companies issuing shares in dematerialized form has to comply with the provisions of Depositories Act 1996. अब Depositories Act के 1996 के जो प्रोविजंस होंगे उसके मुताबिक कंपनी को अपने शेयर्स डिमटेरियलाइज्ड फॉर्म में इशू करने पड़ेंगे। Provision or conditions for allotment of shares. So every company, whoever want to issue the shares, have to comply with the provisions of the Companies Act 2013. So the provisions of the Companies Act 2013 for the allotment of shares are divided into two, that is the statutory provisions and the general provisions. So first, that is the statutory provisions. Under statutory provision, first that is the registration of prospectus. So whenever the company wants to issue the shares, first it has to send one of the copy of the prospectus to the registrar of the company for registration, and it must be signed by the proposed directors. So that is the registration of prospectus means जो भी कंपनी के प्रोस्पेक्टस रहेंगे, एक कॉपी अपने को रजिस्टर ऑफ द कंपनी में सेंड करना पड़ता है, उसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, और ये जो प्रोस्पेक्टस रहते हैं उसको कम से कम जो प्रोपोज डायरेक्टर्स रहते हैं कंपनी के उन्होंने साइन करना चाहिए। So that is the registration of prospectus. Second, that is the application money. अब application money, the company has to collect the application money from the applicant, which should be minimum 5% or 25% of the shares amount, or as the amount which has been specified by the SEBI, and it has to be deposited in the specified bank of the company. Then next, that is the minimum subscription. Minimum subscription means that is the minimum subscription 90% of the shares must be subscribed by the general public, and it has to be collected within 30 days from the issue of prospectus. मीन्स ये प्रोविजन है कि कम से कम 90% शेयर्स सब्सक्राइब करना चाहिए जनरल पब्लिक ने। फॉर एग्जांपल, अगर आपने 100 शेयर्स अलॉट किए हैं, इशू किए हैं तो उसमें से कम 90% मीन्स 90 शेयर्स मस्ट बी सब्सक्राइब बाय द जनरल पब्लिक. Suppose if this minimum subscription has not been collected by the company, at that time the company has to refund all the application money to the applicant within a specified time period or within 15 days of the closure of the issue. मीन्स अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन कलेक्ट नहीं किया गया है कंपनी की तरफ से, तो कंपनी को तो पैसे रिटर्न करना ही है, साथ में कंपनी शेयर्स भी अलॉट नहीं कर सकती अपने एप्लीकेंट को, इसलिए मिनिमम सब्सक्रिप्शन मस्ट है.
Now next, that is closing of subscription list. Subscription list must be kept open for at least 3 working days and not more than 10 working days. Means within this period the shares can be applied by the applicants. ये जो भी पीरियड रहेगा 10 दिन का या 10 दिन से कम का या 3 दिन से ज़्यादा का, तो ये विद इन ये स्पेसिफाइड पीरियड के बीच में जो भी एप्लीकेंट्स रहेंगे वो शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं. देन बेसिक ऑफ अलॉटमेंट. बेसिक ऑफ अलॉटमेंट विल बी एज पर द मिनिमम एप्लीकेशन. मीन्स जितने भी अपने को एप्लीकेशन मिले होंगे उसके बेस पे अपन शेयर्स अलॉट करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर कंपनी ने इशू किए 10,000 शेयर्स और कंपनी को पूरे के पूरे 10,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन मिल चुके होंगे, तो कंपनी क्या करेगी, जिसने 10 शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा उसको 10 अलॉट कर देगी. मीन्स जिसने 50 के लिए अप्लाई किया होगा उसको 50 अलॉट कर देगी. सो अकॉर्डिंगली द शेयर्स कैन बी अलॉटेड. देन नेक्स्ट, दैट इज ओवर सब्सक्रिप्शन. ओवर सब्सक्रिप्शन मीन्स आपने जितने भी शेयर्स इशू किए उससे ज़्यादा अगर आपको एप्लीकेशन आए हैं तो उसको बोलते हैं अपन ओवर सब्सक्रिप्शन. सेम फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू हैव इशूड 10,000 शेयर्स और आपको एप्लीकेशन मिले हैं 11,000 शेयर्स के लिए, मीन्स 10,000 से ज़्यादा मिले हैं, तो उसको बोलते हैं अपन ओवर सब्सक्रिप्शन. देन नेक्स्ट, दैट इज परमिशन टू डील ऑन स्टॉक एक्सचेंज. तो जितनी भी कंपनी है वो जब भी शेयर्स इशू करेगी जनरल पब्लिक को, तो उस समय कंपलसरी है उनको कि उनको अपना नाम कोई भी एक रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड करवाना पड़ता है. लिस्टेड करवाना मीन्स उनको परमिशन लेनी पड़ती है. इन मीन्स दे हैव टू अप्लाई इन वन और मोर रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज. एंड द प्रोस्पेक्टस मस्ट बी मेंशन द नेम ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज. मीन प्रोस्पेक्टस में जो भी लिस्टेड स्टॉक एक्सचेंज में कंपनी ने अपना नाम लिस्टेड करवाया होगा उसका नाम भी प्रोस्पेक्टस में रहना जरूरी रहता है. नेक्स्ट, अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजर्स टू द इशू एंड वेरियस अदर एजेंसीज. तो जब भी कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करेगी है तो सर्टन अपन मैनेजर्स और वेरियस एजेंसीज अपन अपॉइंट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मर्चेंटाइन बैंकर्स अपन अपॉइंट करते हैं एज एन मैनेजर, या फिर अपन कलेक्टिंग बैंकर्स अपन अपॉइंट करते हैं जहाँ पे अपन अपने शेयर से रिलेटेड जो भी पैसे अपन अपने को मिलेंगे, एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, वो सब अपन पर्टिकुलर बैंक में अकाउंट ओपन करके वो पर्टिकुलर अकाउंट में जमा करवाते हैं. या तो फिर अंडर राइटर्स अपन को अपॉइंट करने पड़ते हैं, ब्रोकर्स अपॉइंट करने पड़ते हैं, फिर एडवर्टाइजिंग एजेंट अपॉइंट करने पड़ते हैं या रजिस्ट्रार अपॉइंट करने पड़ते हैं. तो इन सब के भी नाम उस प्रोस्पेक्टस में रहना जरूरी है. तो ये हो गई अपनी स्टैट्यूटरी प्रोविजंस. Now next, that is general principles. So in addition to the provisions of the Companies Act 2013, that is the statutory provision, the company also has to follow the certain general principles. First, that is the proper authority. Here the board of directors or the allotment committee set up by the board has the authority to allot the shares. Means कंपनी के जो board of directors रहेंगे या कंपनी ने जो particular committee allot की होंगी for the allotment of the shares, वो particular पर्सन को ही अथॉरिटी रहती है शेयर्स अलॉट करने की. नाउ नेक्स्ट, अलॉटमेंट मस्ट बी अगेंस्ट एप्लीकेशन ओनली. जो भी कंपनी को एप्लीकेशंस मिले होंगे एप्लीकेंट की तरफ से, सिर्फ उन्हीं को ही अपन शेयर्स अलॉट कर सकते हैं. मीन जो भी एप्लीकेंट ने रिटर्न एप्लीकेशन अपने को सबमिट किए होंगे अलॉन्ग विथ एप्लीकेशन मनी, सिर्फ उन्हीं को ही अपन शेयर्स अलॉट कर सकते हैं. नेक्स्ट, रीजनेबल टाइम. The company has to allot the shares within a reasonable time, means within 60 days of the receipt of application or within 5th day from the date of the issue of prospectus. Now next, absolute and unconditional allotment. जो भी allotment रहेगा it has to be made according to the terms of the prospectus. जो भी प्रोस्पेक्टस में दिए होंगे अकॉर्डिंग कि अलॉटमेंट किस तरीके से किए जाएंगे, उसी तरीके से अपने को शेयर्स अलॉट करने पड़ेंगे. मीन्स शेयर शुड बी अलॉटेड ऑन द सेम टर्म्स एज स्टेटेड इन द प्रोस्पेक्टस एंड एप्लीकेशन फॉर्म. नेक्स्ट, कम्युनिकेशन. वंस द शेयर्स हैज बीन अलॉटेड टू द applicant, the return application, that is the letter of allotment, has to be sent to the applicant that the particular number of shares has been allotted to them. मीन्स जब भी कंपनी शेयर्स अलॉट करेगी पर्टिकुलर रिस्पेक्टिव एप्लीकेंट को, तो उनको लेटर ऑफ अलॉटमेंट के थ्रू बताया जाता है कि हमने आपको इतने शेयर्स अलॉट किए हैं, तो अब आप हमको अलॉटमेंट मनी पे कर दो पर्टिकुलर स्पेसिफाइड पीरियड के अंदर.
that is the communication. Like that we have to communicate with the help of the letter of allotment. Then next, that is the allotment should not be in contravention of any other लॉस, मीन्स जो भी कंपनी के लॉस होंगे या जो भी लॉस होंगे उसके मुताबिक ही अपने को शेयर्स अलॉट करना पड़ता है, उसके अगेंस्ट में अपन नहीं जा सकते। अगर अपन जाएंगे तो वो हो जाएगा अपना इनवैलिड। फॉर एग्जांपल, अगर आप शेयर्स माइनर को अलॉट कर रहे हो जो कि इनवैलिड है एज पर लॉस, so we cannot violate it. So these were the general principles. Now if a company allows the shares after fulfilling all the above mentioned requirements or the provisions, such an allotment is called as regular allotment. Means company ने अगर सारे के सारे provisions कंप्लीट की होंगी तो उसको बोलेंगे अपन रेगुलर अलॉटमेंट। लेकिन अगर कंपनी ने एक भी प्रोविजन सेटिस्फाई नहीं की होंगी तो उसको बोलेंगे अपन इरेगुलर अलॉटमेंट, जो कि इनवैलिड है। Share certificate. Share certificate is a registered document issued by a company which is an evidence of ownership of specified number of shares, and it has been issued under the common seal of the company and signed by two directors duly authorized by the board of directors and the company secretary or any other authorized person. मीन्स शेयर सर्टिफिकेट क्या रहता है? ये एक लीगल प्रूफ है, लीगल एविडेंस है कि आप पर्टिकुलर कंपनी के शेयर होल्डर हो और आपने कंपनी के पर्टिकुलर नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड किए हैं, इसलिए कंपनी आपको उसके अगेंस्ट में प्रूफ करके शेयर सर्टिफिकेट इशू करती है। ये शेयर सर्टिफिकेट कंपनी इशू करेगी अंडर द कॉमन सील, जिस पे कंपनी का सील लगा हुआ रहेगा, प्लस जो पर्टिकुलर डायरेक्टर्स, ऑथराइज डायरेक्टर्स या कंपनी सेक्रेटरीज जिन रहेंगी उनकी सिग्नेचर रहेगी, एंड इट विल एक्ट एज एन एविडेंस ऑफ प्रूफ फॉर द होल्डिंग ऑफ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ शेयर्स, एंड दिस शेयर सर्टिफिकेट इज इशूड ऑन पार्टली और फुल्ली पेड अप शेयर्स। मीन्स अगर आपके पार्टली या फुली पेड अप शेयर्स रहेंगे तो भी आपको शेयर सर्टिफिकेट इशू की जाती है। Then contents of share certificate. Share certificate should be in form SH1 as prescribed under the Companies Act Rules 2014. अब फॉलोइंग आर द कंटेंट्स ऑफ द शेयर सर्टिफिकेट। शेयर सर्टिफिकेट में क्या क्या होना चाहिए? एक तो नेम ऑफ द कंपनी रहता है, कंपनी का जो CIN नंबर रहता है, फिर उसके बाद में कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस रहता है, मीन्स कंपनी कहाँ पे सिचुएटेड है, उसके बाद फोलियो नंबर रहता है, मीन्स कहाँ से कितने नंबर तक के शेयर्स आप हेल्ड कर रहे हो, फिर उसके बाद में शेयर सर्टिफिकेट नंबर रहता है, फिर नेम ऑफ द मेंबर्स, पूरे मेंबर्स की डिटेल्स रहते हैं, फिर बाद में मेंबर्स का नाम क्या है, फिर उनका एड्रेस क्या है, उनका ऑक्यूपेशन क्या है, तो पूरे डिटेल्स ऑफ द मेंबर्स। उसके बाद में नेचर ऑफ द शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स, देन डिस्ट्रीब्यूटिव नंबर ऑफ द शेयर्स, मीन्स आपने कौन से शेयर्स हेल्ड किए, प्रेफरेंस शेयर्स है, इक्विटी शेयर्स है, या कोई टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स है, या फिर कितने नंबर ऑफ शेयर्स आपने हेल्ड किए, उसके डिस्टिंक्टिव नंबर्स, ये सारी चीज़ें शेयर सर्टिफिकेट में दी हुई रहती है। देन अमाउंट पेड ऑन शेयर्स, मीन्स आपने पर्टिकुलर शेयर्स पे कितना पैसा पे किया है। मीन्स अगर सपोज 10 रुपये का एक शेयर है तो आपने अगर 6 रुपये पर शेयर के हिसाब से पे कर चुके होंगे तो वो भी उसमें मेंशन होगा। उसके बाद में कॉमन सील एंड इफ एनी एंड सिग्नेचर ऑफ टू डायरेक्टर्स एंड द कंपनी सेक्रेटरी, ये भी शेयर सर्टिफिकेट में रहता है। मीन्स कंपनी के सील रहेगा, उसके बाद में 2 डायरेक्टर की सिग्नेचर रहेंगी, एंड इट हैज़ टू बी काउंटर साइंड बाय द कंपनी सेक्रेटरी। सो दैट इज शेयर सर्टिफिकेट। Time of issue of share certificate. Now first, within 2 months from date of incorporation to the subscribers of the memorandum of association, जो भी memorandum of association के subscribers रहेंगे, जो फर्स्ट डायरेक्टर्स रहेंगे कंपनी के, उनको अपन within 2 months from the date of incorporation, में जब भी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाएगी, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिलेंगी, उसके 2 महीने के अंदर अपने को उनको शेयर सर्टिफिकेट इशू करना पड़ता है। दूसरा है विदिन 2 months फ्रॉम डेट ऑफ अलॉटमेंट टू अलॉटीज इन केस ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, जो अपने एप्लीकेंट्स रहते हैं जिसको अपन ने शेयर्स अलॉट किए होंगे तो उनको वो अलॉटीज को अपने को 2 महीने के अंदर उनको शेयर सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ता है। मीन्स 2 महीने के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट, जब भी शेयर्स अपन उनको अलॉट किए होंगे उसके 2 महीने के अंदर उनको शेयर सर्टिफिकेट अपने को सबमिट करनी पड़ती है। देन विदिन 1 month फ्रॉम डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर और इंटीमेशन ऑफ ट्रांसमिशन टू द ट्रांसफरी इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स एंड टू द लीगल रिप्रेजेंटेटिव इन केस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। मीन्स जो ट्रांसफर ऑफ शेयर्स रहते हैं उस समय ट्रांसफरी को अपने को 1 महीने के अंदर शेयर सर्टिफिकेट इशू करना पड़ेगा, या
फिर इन केस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो रहेंगे उनको 1 महीने के अंदर शेयर सर्टिफिकेट इशू करना पड़ता है। तो ये हो गया अपना टाइम ऑफ इशू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट। नाउ नेक्स्ट दैट इज द डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट। Next, that is duplicate share certificate. A company can issue the duplicate share certificate if the original share certificate has been defaced or mutilated or torn. Means and is surrender to the company. मीन्स जो ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट रहती है वो शेयर होल्डर की या तो डैमेज हो चुकी होंगी या स्पॉइल हो चुकी होंगी या फट गई होंगी या फिर कोई शेयर होल्डर ने अपनी पुरानी शेयर सर्टिफिकेट सरेंडर कर दी होंगी कंपनी को, तो उस समय कंपनी उनको ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट इशू कर सकती है। या फिर इट हैज़ बीन प्रूव्ड बाय द होल्डर दैट द ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट इज लॉस्ट और डिस्ट्रॉयड। या फिर जो शेयर होल्डर होंगे उन्होंने अगर कंपनी को प्रूव किया होगा कि हमारी ओरिजिनल जो शेयर सर्टिफिकेट है वो गुम गई है, लॉस्ट हो गई है, तो उस समय कंपनी उनको डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इशू कर देगी। अब ये जो डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट रहती है ये कंपनी विद इन 3 मंथ्स इशू करती है फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन। जब भी शेयर होल्डर ने अप्लाई किया होगा डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट लिए तो उसके 3 महीने के अंदर कंपनी उनको डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इशू कर देती है। या फिर कंपनी इशू इट ओनली टू रजिस्टर्ड शेयर होल्डर्स, जो कंपनी के रजिस्टर्ड शेयर होल्डर्स रहेंगे सिर्फ उसी को ही डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इशू की जाती है। एंड द डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट शुड बी स्टेटेड इन बोल्ड दैट इट इज़ अ डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट। मीन्स ये डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट को बोल्ड लेटर में कंपनी लिख के देती है सर्टिफिकेट पे कि ये डुप्लीकेट है। तो दिस इज़ द डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट।